সকলকে জয় যিশু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আজকের সুন্দর দিন আমাদেরকে সবাইকে একত্র করেছে, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। হয়তো আমরা একে অপরকে চিনি না, জানি না, কিন্তু ঈশ্বর সবাইকে চেনেন। তিনি আমাদের সে মাতৃ জগৎ থেকে আমাদেরকে মনোনীত করেছেন, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আসুন মাথা নত করি এবং প্রার্থনা আছে। পিতা পরমেশ্বর, তোমার ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দিই পিতা গো, আজকের এই সুন্দর দিনের জন্য প্রভু। তুমি আমাদের প্রত্যেকটা ভাই বোনকে একত্র করেছে প্রভু, তোমার সে অনুগ্রহ জানা প্রভু, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো আমাদের প্রত্যেককে প্রভু, যারা আজকে উপস্থিত হয়েছে প্রভু, এবং যারা প্রভু আজকে প্রভু হয়তো নানা কারণ হয়তো আসতে পারেনি প্রভু, প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো এবং আগামী দিনে প্রভু তুমি প্রত্যেককে তুমি একত্রিত করো প্রভু। আশীর্বাদ করো প্রভু, আমাদের প্রত্যেককে তো অনুগ্রহ দাও, তুমি অনুগ্রহ আমাদের জীবনে যথেষ্ট প্রভু। তুমি আমাদের তোমার শক্তি সামর্থ্য দাও প্রভু, এবং তোমার প্রভু সেই পিতাকে ধার্মিকতা রাজ্যকে অন্বেষণ করতে পারি প্রভু, তোমাকে প্রভু খুঁজতে পারি প্রভু। আজকে বহু মানুষ তোমাকে জানে না প্রভু, তারা তোমাকে জানতে পারে প্রভু, এবং আজকের এই প্রভু প্রভু সবার মধ্য দিয়ে প্রভু যেন প্রভু সারা মানুষ তোমাকে জানতে পারে। হ্যাঁ প্রভু, যারা প্রভু কাছে প্রভু যারা তোমাকে প্রভু অন্বেষণ করছে প্রভু, তারা তোমার কাছে আসতে পারে প্রভু, এবং এই পশ্চিম বাংলা প্রভু তোমার প্রভু রাজনীতি আসতে পারে প্রভু। এই পশ্চিম বাংলা প্রভু যেন তোমাকে প্রত্যেক মানুষ জানতে পারে, প্রত্যেক চালু তোমাকে নত হতে পারে, প্রত্যেক যুবক তোমাকে স্বীকার করতে পারে প্রভু। এই জীবনে নেমে আসুন প্রভু, তোমার প্রভু রাজ্য নেমে আসুন প্রভু। এই প্রভু আশীর্বাদ করো প্রভু, আশীর্বাদ করো প্রভু। জেমস প্রভু হর মিনিস্ট্রিকে তুমি আশীর্বাদ করো কেন প্রভু, আমাদের এই প্রভু মিনিস্ট্রির মধ্য দিয়ে প্রভু সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তোমাকে জানতে পারে প্রভু। আমাদের প্রতিটা ঘরে ঘরে গিয়ে প্রতিটা কোণে কোণে গিয়ে তোমার প্রভু সুসমাচার প্রচার করতে পারি প্রভু। তুমি সে আমাদের আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ দাও প্রভু। থ্যাংক ইউ লর্ড প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, যারা আজকে প্রভু সুস্থ নেই প্রভু, অসুস্থ রয়েছে প্রভু, তাদের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু। তোমার সে শক্তি সামর্থ্য দাও, আরোগ্যতা দাও প্রভু। তুমি আরোগ্যকারী ঈশ্বর প্রভু, তোমার সে প্রভু মধ্যে তুমি আমাদের সমস্ত প্রভু দুর্বলতা সকল গ্রহণ করেছো, ব্যাধি সকল গ্রহণ করেছো প্রভু। তাই তুমি বাবাকে দাবি করি প্রভু, আমাদের বিশ্বাস করি প্রত্যেকে প্রভু তোমার সে প্রভু আরোগ্যতা দিলে প্রভু, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। যারা প্রভু আজকে প্রভু আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়েছে প্রভু, তার আর্থিক সফলতা দাও প্রভু। প্রত্যেককে তুমি আর্থিক সফলতা দাও প্রভু, আশীর্বাদ করো প্রভু। তাহলে প্রভু আমরা আরো তোমার রাজ্যে ব্যবহার হতে পারি, প্রত্যেককে তোমার রাজ্যে ব্যবহার করো প্রভু। দয়া করো প্রভু, আমাদের পাঁচটার জন্য প্রার্থনা করি, পাঁচটা জেমস তার পরিবারের জন্য প্রভু। এই পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। তাহলে প্রভু এই প্রভু জেমস সরল মিষ্টি পরিবার, এই পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রভু যেন আমরা আরো যেন প্রভু পশ্চিমবাংলা প্রভু তোমার নামকে ছড়াতে পারি প্রভু। আশীর্বাদ করো প্রভু, কোনে কোনে গিয়ে তোমার প্রভু সেবা করতে পারি প্রভু। থ্যাংক ইউ লর্ড প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এই মিষ্টিকে আরো বৃদ্ধি করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, এই পরিবার তোমার যা প্রয়োজন প্রভু তুমি জুগিয়ে দেবে বিশ্বাস করি, কারণ তুমি প্রভুকে জীববাজির ঈশ্বর প্রভু, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। দয়া করো প্রভু, প্রত্যেককে প্রভু যারা প্রভু আজকে এসে প্রভু সে যুবক যুবতী ও প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করি, আর পড়াশোনা মনোনিবেশ করতে সাহায্য করো প্রভু। আরো প্রভু পড়াশোনা বৃদ্ধি করো প্রভু, তারা পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে তোমার প্রভুকে মহিমা করতে পারে, তোমার গৌরব করতে পারে। তারা প্রভু সে কলেজে স্কুলে তোমার প্রভু সুসমাচার প্রচার করতে পারে প্রভু। আশীর্বাদ করো প্রভু, তাদেরকে দয়া করো, তাদের মধ্যে প্রভুকে তোমার মহিমা আরো বৃদ্ধি পায় প্রভু। প্রভু আজকে প্রার্থনা করি আমাদের যারা প্রভু আজকে প্রভু সেই প্রভুকে বয়স করে এসছেন প্রভু, তাদেরকে তুমি প্রভু আরো আশীর্বাদ করো, দীর্ঘ আয়ু দাও প্রভু। দয়া করো প্রভু, তাদের মধ্য দিয়ে তোমার সেই মহিমার প্রকাশ হতে পারে প্রভু। আমাদের আজকে এই সভা করার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার মহিমা করা প্রভু, তোমাকে প্রভুকে গ্লোরিফাই করা প্রভু। তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই প্রভু, আমাদের প্রভু অর্থের প্রয়োজন নেই, তোমাকে প্রয়োজন প্রভু, তোমাকে প্রয়োজন প্রভু। বিশ্বাস করি তুমি যখন থাকবে প্রভু, আমাদের সব কিছু আমরা পাবো প্রভু। একটা বাক্য বলে যে প্রভু তোমরা সেই প্রভু ধার্মিকতা রাজ্যকে অন্বেষণ করো, তোমাদের সব কিছু দেওয়া যাবে।
যাবে প্রভু বিশ্বাস করি প্রভু আজকে আমার তোমাকে প্রয়োজন প্রভু আজকে তোমার অভাব আমাদের মধ্যে রয়েছে প্রভু তুমি আরো আমাদের কাছে এসো প্রভু তোমার অনুগ্রহ দাও প্রভু প্রত্যেককে প্রভু স্পর্শ করো আজকে পবিত্র আত্মা তোমার সে উপস্থিতি আমার দরকার তো বাক্য বলছে যেখানে যেখানে 2 বা 3 জন তোমার নামে একত্রিত হয় তুমি সেখানে উপস্থিত থাকো তোমায় বিশ্বাস করি তোমার উপস্থিতি এখানে রয়েছে প্রভু তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু আজকে প্রথম থেকে শেষ প্রভুকে যা হবে আরাধনা সাক্ষ্য বাক্য প্রভু সব ভার আমি তোমাকে দিই প্রভু তুমি আমাদেরকে পরিচালনা করো প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা ধারণ করেছো প্রভু আমরা প্রভু মূর্খ প্রভু আমরা মূর্খ প্রভু তোমার বাক্য বলছে জগতে জ্ঞান তোমার কাছে মূর্খতা প্রভু তাই প্রভু আমরা মূর্খ হয়ে থাকতে চাই প্রভু তুমি যখন প্রভু তোমার সেই প্রভু তোমার রাজ্যের জন্য প্রভুকে গাধাকে ব্যবহার করেছিলে প্রভু আমরা প্রভুকে গাধার থেকেও গাধা প্রভু তুমি আমাদের ব্যবহার করো পিতা তোমার রাজ্যের জন্য ব্যবহার করো এবং তুমি আমাদের সব ভার তোমাকে দিলাম প্রভু প্রথম থেকে শেষ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই তুমি তাকে সুস্থভাবে পরিচালনা করলে বিশ্বাস করি প্রভু ধন্যবাদ প্রার্থনা শুনলে তোমাকে উচ্চকিত করি সকল গৌরব প্রশংসা মহিমা তোমারই প্রার্থনা যিশু नामे চাই आमेन आमेन धन्यवाद जीवित महान आणि दयालु परमेश्वर पिता स्वर्ग में विराजमान होने वाले परमेश्वर पिता इस समय आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी इस समय इस वक्त में पिताजी प्रभु हम लोग को पिताजी दूर नजीक से इकट्ठा एकत्रित किया है पिताजी मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी इस समय विशेष में प्रार्थना करता हूं पिताजी इस जगह में पिताजी आपकी उपस्थिति होने पाए पिताजी इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पिताजी इसमें से आप इस समय इस वक्त में जितने लोग आए हैं हर एक के जीवन में पिताजी आपकी महिमा होने पाए पिताजी और इस समय इस वक्त में पिताजी विशेष में प्रार्थना करता हूं पिताजी अपने बेटा दास और पिताजी हरे लोग दासी लोग जितने आए हैं और पिताजी जो इस समय इंस्ट्रूमेंट में पिताजी बजाने वाला है पिताजी गाना गाने वाला अपने दास को भी पिताजी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं पिताजी और इस समय सुनने वाला और हालेलुया आपके चरण में आने वाला पिताजी सचमुच आपकी आत्मा अनुसार पिताजी ग्रहण करने पाए पिताजी मैं बोलकर प्रार्थना करता हूं पिताजी आप कार्य करने वाला परमेश्वर पिता आप है पिताजी आपके बिना हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते पिताजी आज आपने पिताजी हम लोग को आसान दिए हैं इसलिए हम इस समय इस वक्त में आपके चरण में आने पाए पिताजी इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पिताजी पिता आपकी महिमा हालेलुया आपकी योजना अनुसार पिताजी इस जगह में उपस्थित होने पाए पिताजी पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से पिताजी आप खींचने कीजिए पिताजी जितने लोग पिताजी आपके चरणों में आने पाए पिताजी उसने पिताजी आने पाए बोलकर मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी जो पिताजी अपने दास पिताजी इस समय इस वक्त में पिताजी आज के दिन में पिताजी जो वचन बोलेंगे पिताजी हर एक के जीवन से पिताजी आपकी महिमा निकलने पाए बोलकर मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी कार्य करने वाला परमेश्वर पिता आप है पिताजी यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पित करता हूं पिताजी शुरू से लेकर आखिरी तक आपके हाथ में होकर पिताजी चलाइए बोलकर मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी हमेशा हमारे शुरू से लेकर आखिरी तक पिताजी आपकी उपस्थिति मांगता हूं पिताजी धन्यवाद पिताजी मैं सारी बातों को पिताजी तेरे हाथ में सौंपते हुए आदर में समझते प्रभु इस मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन Thank you brother Aru and pastor Lazar प्रवेश करूंगा आइए उस फाटक में खटखटाए गाने के साथ में आनंद ले और आनंद दे परमेश्वर हर एक को आनंद देना चाहता है पास्टर राजीव एंड बेटी आराधना जय मसीह सभी को जय मसीह क्योंकि हॉल गूंजना चाहिए हालेलुया आप लोग खुश हैं क्यों क्योंकि हम लोग जिंदा खुदा का आराधना करने के लिए आए हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हम लोग गाएंगे कुछ गीतों को आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर बात करने जा रहा है हालेलुया Bye.
बांग्ला सॉन्ग हम लोग गाएंगे। ए जीवन में कोनो आशा नहीं, आज के आसे काली नहीं। हालेलुया। हम लोग इस गीतों को गाएंगे और हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नाचते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में झूमते हुए हम इस गीत को गाएंगे। এই জীবনে কোনো আশা নাই, আজকে
धन्यवाद है प्रभु, आप काम करने वाला है पिता। प्रभु सचमुच आपने जीवन को प्रभु खोलते हैं प्रभु इस समय। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सचमुच प्रभु जी। आज हम नहीं मान किए, नहीं पीट किए, ये तेरे महान करुणा का फल है पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। अब प्रभु आप सचमुच प्रभु जी, प्रभु आप महान है, आप सच्चा है, आप जीवित खुदा है पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आए हम सभी प्रार्थना करें। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 लोग प्लेस के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें प्लेस करे, उन्हें आशीष करे, उनके परिवार में, उनके मिनिस्ट्री में, उनके हर क्षेत्र में परमेश्वर मदद करे बोल के हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं विशेष पिता परमेश्वर, पिता तेरे दास के लिए, तेरे बेटी के लिए, और परमेश्वर तूने और प्रभु अब तक प्रभु जी उन्हें संभाल के रखा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और विशेष हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के सेवकाई में तो आशीष करे पिता परमेश्वर, पिता जहाँ भी जाए प्रभु तेरे स्वर्गीय दूत का पहरा दीजिएगा पिता परमेश्वर, और जहाँ भी प्रार्थना करे प्रभु उनके द्वारा प्रभु जी छुटकारा को दीजिएगा पिता परमेश्वर, और आपके उपस्थिति को दीजिएगा पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक सेवा में, और प्रभु जी आपके महिमा में प्रभु आप प्रभु जी तेरे बेटा को प्रभु आप आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु और भी बुद्धि और भी ज्ञान से तो भर दीजिएगा
दिया पिता परमेश्वर, ताकि तेरे महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए प्रभु आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। वैसे पिता परमेश्वर आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी तू मदद कर, उनके कामों में तो आशीष कर प्रभु जी। और परमेश्वर जो बहन है प्रभु जी, उस बहन को भी तो आशीष कर पिता परमेश्वर का, जो एक छोटे परिवार है, जो फैमिली है प्रभु, उन्हें प्रभु जी आप एक कुशल पूर्वक रखे हैं प्रभु, एक खुशी और एक शांति के साथ में रखे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। परिवार है पिता परमेश्वर, आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर का, आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम बोलते हैं पिता प्रभु जी, आशीष बोलते हैं पिता प्रभु जी उनके जीवन में पिता परमेश्वर। अब प्रभु जी उनके मिनिस्ट्री में तो आशीष कर, उनके सेवकाई में प्रभु जी आशीष कर पिता परमेश्वर पिता। और प्रभु जी उनके और प्रभु जी शरीर में प्रभु जी आपने आशीष दे के रखा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हर क्षेत्र में प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना को तूने सुना है, ग्रहण किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उन्हें आशीष से प्रभु आपने भर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये दुआ प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस कलीसिया के लिए भीड़ की ओर चलेंगे और प्रार्थना इस सॉन्ग में जाएगी। ठीक है, हम लोग सादरी में गाएंगे, गाएंगे हाँ ठीक है, हम लोग खड़ा हो जाएंगे और हम लोग ऑफरिंग करेंगे। जी नहीं भरेला, हम लोग इस गीत को गाएंगे और हम लोग सब मिलके गाएंगे। हम लोग खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान में हम लोग खड़े हो जाएंगे और इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। सभी गाएंगे हम लोग। जी नहीं भरेला, जी नहीं भरेला, जी नहीं भरेला, जी नहीं भरेला। कते सुंदर आहे, जी नहीं भरेला, जी नहीं भरेला, जी नहीं भरेला। अंधरिया रतिया में, जुगनू कबरिया में, अंधरिया रतिया में, जुगनू कबरिया में, चला तोर संगे, जिया तोर लागे, चला तोर संगे, जिया तोर लागे। कते सुंदर याही, नहीं भरेला, नहीं भरेला, नहीं भरेला, नहीं भरेला, नहीं भरेला।
यीशु के पाए के लो, मसीह के पाए के लो, यीशु के पाए के लो, यीशु के पाए के लो। कते सुंदर, कते सुंदर, कते सुंदर याही नहीं भरेला, नहीं भरेला, नहीं भरेला, नहीं भरेला, नहीं भरेला। आइए हम लोग दान के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर मंजू को फिर से मैं बुलाना चाहूँगा कि दान के लिए प्रार्थना कर देंगे। सिस्टर मंजू प्लीज दान के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। आज हम लोग इस बहुमूल्य दान के लिए हमने हर एक ने मुट्ठी को खोला है, प्रभु ने देखा है और प्रभु कहता है कि वो 100 गुना वापस करने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो धन आपने आज हमें बोया है हमारे जीवन में पिता, वो तो पवित्र प्रभु असीमित है मेरे प्रभु जी। जो पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन के लिए है, ना कि संसार के लिए, लेकिन आने वाले युगानुयुग जीवन के लिए भी है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जो प्रतिज्ञा हमने लिया है मेरे प्रभु जी, वो प्रतिज्ञा को लेकर मेरे प्रभु जी वो हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे प्रभु जी। और आने वाले समय में प्रभु जी वो फलों को प्रभु हमारे जीवन में हर एक कोई देखने पाए प्रभु, ऐसा आशीर्वाद करना पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय पिता, विशेष रूप से पिता सब हर एक ने जो मुट्ठी को खोल कर प्रभु तेरे राज्य के लिए बोया है मेरे पवित्र पिता। ये पवित्र परमेश्वर प्रभु छोटी सी है, लेकिन मेरे पवित्र पिता जब तेरे आशीष इसमें आती है मेरे प्रभु जी, वो मेरे पवित्र पिता वो बहुमूल्य हो जाता है मेरे प्रभु जी। और पवित्र परमेश्वर इस पवित्र प्रभु दानों के माध्यम से प्रभु जी हर एक आंसुओं को पोछी जाए प्रभु जी। जहाँ कहीं भी पवित्र परमेश्वर इस धन इस्तेमाल हो प्रभु, वहाँ से स्वर्ग की आशीष से उतरने पाए प्रभु। ऐसा प्रभु अनुग्रह और दया को कर पिता, हम तेरे पवित्र सामर्थ के हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिर कब तक परमेश्वर दिया है? किसको दिया है? यीशु मसीह को दिया है। प्रसन्न परमेश्वर की ओर से आखिर कब तक? कब तक तुम मन नहीं फिराओगे? कब तक यीशु मसीह को आप छल और धोखा देते रहोगे? परमेश्वर आज पूरी दुनिया से यह प्रश्न पूछे, उत्तर आप और हमारे पास है। और रोज दिन का जीवन में परमेश्वर हमें हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए इंतजार करता है। नूह के समय में परमेश्वर ने यही प्रश्न को पूछा था। आदम के समय में परमेश्वर यही प्रश्न को पूछा था कि आदम तूने ऐसा क्यों किया? हो सकता है कि आज हमसे और आपसे भी परमेश्वर पूछता है कि आखिर कब? परमेश्वर घोषणा किया आदम के पाप में गिरने के बाद, घोषणा किया कि मैं मनुष्य जाति को फिर से बचाऊंगा, और अपना बेटा को, अपना खुद बेटा को हमारे बीच में उसने भेजा, और भेज करके इतना बड़ा उपकार का काम किया है, उसे हम कदापि भूलना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर आज अपने बेटे का हिसाब किताब बढ़िया से लेगा, बहुत अच्छे तरीके से। हम अपने जीवन में अपने अकाउंट को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने एक कमाई को बड़ी हिफाजत से रखते हैं। परमेश्वर से बड़ा कोई मैथमेटिक्स नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहिए यीशु मसीह। नहीं जागिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 36 पद में यीशु मसीह बोला है, बताया है। परमेश्वर उस बात को, यीशु मसीह को
बोल करके मती को बोला है, उस घड़ी उस समय को ना सर के दूत जानते हैं, ना पुत्र जानते हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो पिता जानते हैं। नूह के समय में सब जितने लोग थे सब के सब उस नाव में लटके हुए थे। कब तक? आखिर कब तक? उस नाव में जितने लोग थे जितनों ने मन को नहीं फिराया था, नूह के समय में उस नाव में पानी में लटके हुए थे। जल प्रलय हो रहा था और पानी भर रहा था, और उस नाव में आखिर कब तक लोग लटके रहेंगे? स्वाभाविक इस पाप के सागर में, इस पाप की दुनिया में शैतान जो हमारा संसार का हाकिम है, हमारी दुनिया को ऐसा बना करके रखा है कि हमारे सारे चीज में वो प्रभुत्व करके रखा है, अधिकार करके रखा है। जिस अधिकार को परमेश्वर ने हमें आदम में दिया था, फिर से यीशु मसीह में हमको फिर से अधिकार मिला है। परमेश्वर पूछता है, आज मनुष्य को रोज दिन चाहिए पैसा, रोज दिन चाहिए उठते बैठते सोते चलते फिरते, हमेशा मनुष्य को पैसा चाहिए। आज दुनिया इसी में मगन है, और ये स्वाभाविक है। आपके शरीर में एक भी अगर ब्लड नहीं रहेगा, आप नेस्तनाबूत हो जाओगे, मतलब इस दुनिया से टिकट कट जाएगा। और इसी लहू में प्राण है। त्रिएक परमेश्वर ऐसी नहीं बना है। इस लहू में परमेश्वर का प्राण, दुनिया को परमेश्वर चेता दिया है अपना बेटा का लहू बहा कर। आज यीशु मसीह पूछता है, आखिर कब तक? मैं बताना चाहता हूं, फिलिपी 4:19 में परमेश्वर किस रीति से कहता है फिलिपुस को, बोलता है, और जो मेरा परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, आप एक कदम भी अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा आप नहीं चल पाएंगे, एक स्टेप नहीं चल पाइएगा, पैसा नहीं रहेगा। मजाक बात नहीं है। परमेश्वर अपना बेटा का लहू बहाया है, बिना आपसे कीमत चुकाए हुए, बिना आप उसको पैसा और कुछ नहीं परमेश्वर मांगा है। और परमेश्वर को हमारा पैसा देने वाले बनते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परिवर्तन को देखना चाहता है। वचन बोलता है, जो परमेश्वर और जो, कितना अच्छा परमेश्वर कहता है, और जो हमारा परमेश्वर भी, और जो हमारा परमेश्वर भी उस धन पर, ध्यान से सुनिएगा, और जो मेरा परमेश्वर, और जो मेरा परमेश्वर भी, कैसे यहां पर फिलिपुस कह रहा है, कैसे यहां पर परमेश्वर इनको प्रकाशन दिया है, और जो मेरा परमेश्वर भी उस धन पर, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके पास एटीएम हो सकता है, स्टेट बैंक का एटीएम हो सकता है, आपके पास एसबीआई का एटीएम हो सकता है, भिन्न भिन्न बैंक का एटीएम हो सकता है। परसों दिन हम लोग पास्टर राजू के साथ और पास्टर के साथ हम लोग जा रहे थे बाइक में गिटार खरीदने के लिए। बिना पैसा का गाड़ी चलता है ऐसा बात भी नहीं। उस धन को जान लीजिएगा, धन आपका बीमारी को छुटकारा दिला देगा। लोगों के पास आज हॉस्पिटल में पैसा है,
लेकिन उस धन से उनको जिंदगी नहीं मिलता है। तकिया के नीचे पैसा है, लेकिन उस धन से उनको छुटकारा नहीं मिलता है। लोगों के पास बैंक बैलेंस है, लेकिन वो बैंक बैलेंस लेकर के नहीं जाता है। उस धन को हमको आज जानना है। उस धन को परमेश्वर बोलता है, कितना अच्छा दिखता है। और मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पास्टर के साथ जा रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, हॉस्पिटल में आज लोग जिंदगी में आज संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी चाह रहे हैं। लेकिन आप एटीएम जाते हो, पैसे निकालते हो और डॉक्टर को, अस्पताल को देते हो। लेकिन हमारा प्रथम डॉक्टर ना एक एटीएम को दिया है, घुटना में आओ और उस घुटना में आकर के प्रार्थना करो, यीशु आपका एक प्रथम एटीएम है, निकालो, प्रार्थना करो। इन द नेम ऑफ जीसस आपका कैंसर का बीमारी दूर होगा, आपको शैतान से लड़ने का सामर्थ्य देगा। यीशु मसीह एक ऐसा एटीएम है जिसको डालोगे, प्रार्थना करोगे, छुटकारा आपको दिलाएगा, छंगाई देगा। हालेलुया। वो धन को हमको आपको लेकर के आज इस्तेमाल करना है। उस धन का कीमत है। उस धन को परमेश्वर भी बोलता है कि परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा का धन है, उस धन को लोग आज इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज लोग जिस धन को रोज दिन कमा रहा है अपने रोजमर्रा का जीवन में, उससे जिंदगी मिलने वाला नहीं है। हम लोग जा रहे थे पास्टर लोग के साथ गिटार खरीदने के लिए। पास्टर के पास खड़ा जी, पास्टर, मैं गाड़ी चला रहा था, पास्टर के पास मोबाइल में फोन आया और मैं सुन रहा था मोबाइल में कि ये गर्भवती है बहन और उसको बुखार आ गया और उसको पैर दर्द कर रहा है। अरे पास्टर बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम लोग प्रार्थना करो, एटीएम यीशु मसीह कैसे काम करता है, यूज कीजिए उस एटीएम को। देखिए जिंदगी नहीं बदलेगा ना तो शैतान भी आपको कभी भी दस्तक नहीं देगा। उस इस्तेमाल कीजिए एटीएम को। नफरत करने वाला शैतान है, आपको यीशु मसीह उस एटीएम से प्यार करना सिखा देगा। मैं गाड़ी चला रहा था, पास्टर बात में सुन रहा था, पास्टर उस एटीएम के बारे में पढ़ा था। घुटने में आओ और उस एटीएम को डालो, बीमारी बुखार चला जाएगा। आपको भी परमेश्वर पूछता है, आखिर कब तक मुझे नहीं इस्तेमाल करोगे? इस संसार का धन जो है ना, मेरी माँ आज से 10 दिन पहले की बात है ना, 25 दिन की बात है, सैकड़ों कब्रिस्तान मैं अपनी माँ को जब विदा किया, अस्पताल में थी 25 दिन, मैं उस महिमा का धन को बांटा। हालेलुया। अस्पताल में थी, मेरी माँ को माँ 9 महीना मुझे गोद में रखी। मुझे पता है एक माँ किस रीति से रखती है, उससे ज्यादा आज माँ से भी बढ़कर जिम्मेदारी मुझे परमेश्वर दिया। हर एक को परमेश्वर जिम्मेदारी देता है। आदम को जिम्मेदारी दिया, आदम ने जिम्मेदारी को नहीं निभाई। हमको आपको भी परमेश्वर जिम्मेदारी देता है।
प्रकाशित वाक्य 21 का 4 बोलता है, मेरे आंसू को परमेश्वर बोझ डालता है, मृत्यु नहीं आएगा, विलाप नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा। उस महिमा का धन आपको गारंटी देता है आंसू पोंछने का। उस महिमा का धन, जो जिस महिमा का धन को स्वर्ग में है, परमेश्वर हमको आपको देना चाहता है। अस्पताल में मेरी माँ थी, मेरी माँ को मैं कहा, माँ आप जरूर 9 महीना मुझे रखें, लेकिन 9 महीने के बाद मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रार्थना करता था मेरी माँ को, परमेश्वर मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरी बेटी जाती थी, बोलती थी, दादी बत्तीसवां मेरी बेटी बोलती थी। क्यों? एक धनवान व्यक्ति, एक लाजर और एक भिखारी व्यक्ति, और एक लाजर एक धनवान व्यक्ति, जब लाजर चला गया परमेश्वर का महिमा का स्थान में, जहां पर महिमा का धन इकट्ठा करके उसने गया था, हम और आप आके कब तक यीशु को छल करते रहेंगे? कब तक धोखा देते रहेंगे? वो धनवान व्यक्ति, लूका 16 का 19 से 31 पद तक आप पढ़ के देख लेना। उस धनवान व्यक्ति गिड़गिड़ाता है और वहां से प्रार्थना करता है। वहां से कुछ प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अपने परिवार के लिए अगर आपको बचाना है तो आप उठ करके आप परमेश्वर से गिड़गिड़ाना शुरू करें। वो धन जो है, महिमा का धन है, कभी आपसे कर्ज नहीं मांग रहे, आप उससे कर्ज नहीं ले रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं पाता है, बल्कि आपको और वो डबल मुनाफा देता है। वो व्यक्ति जो है अपने परिवार के लिए वहां से दुआ कर रहा था। तो क्या वो धनवान व्यक्ति पैसा लेकर के चला गया था? नहीं गया था। वो बोलता है, लाजर और अब्राहम को देख करके बोलता है कि मेरा घर में और भाई ब्रदर है, वो लोग सब शराब पी रहे हैं। अभी ही हम लोग को यहाँ पर इस पृथ्वी में ही हम लोग को अपने परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाना चाहिए। परमेश्वर अपना व्यक्तित्व को, अपना परिचय को, अपने आशीष कर्म करके हमारे बीच में अपने आप का एक रिश्ता को बनाना चाहता है। मैं अपनी माँ को अस्पताल में कहा, मम्मी, माँ मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कर। आखिर तड़पते रहिएगा वहां पर। अभी भी हमको अपने परिवार के लिए सोचना है। बहुत खतरनाक जगह है जिसको हम और आप यहाँ पर अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आज हमसे पूछता है कि कब तक उसने अपना बेटा को दिया। हम अपने परिवार के लिए जुनून रखें। मेरी माँ को अस्पताल में, जो मेरी माँ हमसे ठीक से बात नहीं करती थी, चंद शब्दों में भी बात करती थी, लेकिन जब अस्पताल में मैं अपने पीछे पीछे प्रार्थना करने लगा, मेरी बहन वहां पर थी, खड़ी हो जाएगी। मेरी बहन वहां पर थी, वहां पर देख रही है। मेरी माँ को भीड़ में थी। मैं अपनी माँ को कह रहा लगा कि मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कर। फुस 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 हवा की जैसे प्रार्थना कर रही थी। मेरी मम्मी को बोला, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं जितना जोर से बोल रहा हूं मम्मी, माँ उतना जोर से मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कर।
आज आपको भी परमेश्वर अवसर देता है। जितना भी अस्पताल में पैसा खर्च कर लो, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मेरी माँ जब प्रार्थना करा रहा था, बहुत धीरे धीरे बोली, माँ जोर से प्रार्थना करो, ऐसा बोला था ना मैं। और मैं अपनी माँ को बोला, प्रार्थना मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को बचाना है ना, तो महिमा का धन को यीशु मसीह को इस्तेमाल करो, आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी उपस्थिति, आपकी उपस्थिति सर के सिंहासन तक जाने पाए, हम मसीह की आवाज में एक होने सके। हम मसीह की आवाज कैसे बन सकते हैं, आज हमको अब सबको तय करना है। मेरी माँ प्रार्थना करने लगी, उसके बाद उसका साउंड इतना बढ़ने लगा, वो मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करने लगी और मैं उसको प्रार्थना कराने लगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा कि परमेश्वर का जो महिमा का धन है, उसको सही जगह में इस्तेमाल किया। नो बिजनेस, नो नौकरी, मैंने परमेश्वर का नौकरी में ईमानदारी से सेवा दिया और अपनी माँ को उस जगह भेजने का गारंटी परमेश्वर से किया। और मेरी माँ जब विदा हो रही थी, बड़ी सुकून से गई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। मैं परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर मेरी माँ को पश्चाताप पीड़ा दीजिए, उद्धार दीजिए। परमेश्वर बन रहा नहीं है, परमेश्वर सुनने वाला है। परमेश्वर वचन बोलता है, भजन संहिता 51 का 1 में बोलता है, 55 का 1 में बोलता है। परमेश्वर का दास बोलता है, मेरे परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूं तो कान को लगाइए, और जब मैं प्रार्थना करूं तो मुंह को मत मोड़िए। विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़िए। जब मेरी मां गई खुशी से, अच्छा से, ये गारंटी परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज पूरी दुनिया है ना, सब पैसे के पीछे भागते हैं, और वो पैसा क्या हुआ? उस धन को प्राप्त करने के लिए आदम ने परमेश्वर का महिमा का धन को, जो यीशु मसीह था, उसने खोया। मेरी मां को जब दफनाने गए, सब चला गया कब्रिस्तान से। मैं वहां पर घूम करके हजारों कब्र को मैं घूम करके देखने लगा। प्रभु से कहा, प्रभु वो तो करोड़पति था, धन लेके गया क्या? मेरी मां इतना धन उसके पास था, क्या लेकर के गई? परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या आप महिमा का धन को लेना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने वहां पर कब्र में थे, मेरे साथ एक साहब था, वो यीशु मसीह को ठीक से नहीं जानता है। मेरे घूमने की परिस्थिति को देख करके पूछने लगा कि भैया आप क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं इतने लोग के पास लाखों करोड़ रुपये थे, किसी ने अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गया। वो महिमा का धन है, गारंटी देता है अनंत जीवन का, और अनंत जीवन में आपको वहां पर सुख और सुखी और शांति शांति मिलेगा। लेकिन आप सुबह उठते हैं, रात तक आप रहते हैं ना, तो टेंशन टेंशन चिंता। परमेश्वर, ये परमेश्वर है। अगर आप जा करके किसी भी गरीब जो है ना, रोड में सोता है ना, उसको भी परमेश्वर एक वक्त का खाने के लिए देता, लेकिन उसको पता नहीं है। पास्टर के साथ हम लोग जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, प्रार्थना निधन आ रहा था। पास्टर बोल रहा था कि आप प्रार्थना करो, प्रार्थना। मैं गाड़ी चला रहा था, और जब चलाते चलाते मैं जा रहा था, पास्टर मेरे को बोले कि एक प्रार्थना निवेदन है, उसका नाम ऐसा है, मैं जानता हूं सिलीगुड़ी की रहने वाली है,
मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। ओ प्रभु, मेरे पास कोई बैंक का नाम नहीं है, मेरे पास एक ही बैंक का नाम है, स्वर्ग का बैंक, जो हम यीशु मसीह में महिमा का धन है उसे बांट रहे हैं। और परमेश्वर उस बहन को रिसीव करने दीजिए। और परमेश्वर इतना धनी है ना, गरीब नहीं है, वो कमजोर नहीं। कमजोर परमेश्वर हमको नहीं बनाया, कमजोर हम लोग शैतान बनाया। कंजूस मक्खी जूस बांट के यीशु मसीह को बांटने के लिए परमेश्वर आपका हाथ को छोटा नहीं करता है, बढ़ाइए। मैं बाइक चला रहा था, पास्टर बोला, पास्टर ऐसे ऐसे बात है, उसका पैर दर्द कर रहा है और बुखार है। वो कोई लोग दिया है उसको दवा, ठीक है, वो लोग कोई लोग दवा दिए हैं, राइट, वो लोग टेबलेट दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, और टेबलेट दिए हैं बुखार उतरने का, और उसको दे करके खिला भी दिए हैं, लेकिन बोल रहा है कोई बुखार नहीं उतरा है। हम लोग खड़ा हो जाएंगे, मैं आप लोग को पनिशमेंट देना चाहता हूँ। चलो यीशु तो दया, कम ऑन, हम लोग खड़ा हो जाएंगे, कम ऑन, खुशी से, खुशी से। मैं आप लोग को सताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जितने अपने आप को प्यार करेंगे, इस कलकत्ता को अगर जीतना है ना, तो आज आपको हमको इस कलकत्ता के लिए एक जुनून को पैदा करना है, और वो जुनून यीशु मसीह में हमको पल दे। आइए हम ताली बजा करके गाएंगे। झूठते हुए उस सिखाने के लिए हमको परमेश्वर हमें दिया। Jesus, आनंद के साथ इस बात को परमेश्वर हमें दिया है। वो पूर्ण त्यागा के, वो परमेश्वर आज हमको हर चीज में परमेश्वर संभाला है। यीशु तोर दया, मसीह तोर दया, कहियो ने भूला ओ मसीह तोर दया, यीशु तोर दया, मसीह तोर दया, कहियो ने भूला ओ मसीह तोर दया, कहियो ने भूला ओ मसीह तोर दया। ओ परमेश्वर, आप धन्यवाद दियोगे। निराशा जीवन में आशा तेरे, अब कर डहा में तुझे निराशा जीवन में आशा तेरे, अब कर डहा में तुझे तो आज तक मुझे रात ले जीवन यार दिखाए, तो आज तक मुझे रात ले जीवन यार दिखाए। यीशु तोर दया, मसीह तोर दया, कहियो ने भूला ओ मसीह तोर दया, कहियो ने भूला ओ मसीह तोर दया। Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, आप महान हैं, आपका आदर करते हैं। बाबू डाहो से मौके बचा ले, जीवन डाहा के मौके दिखा ले। बाबू डाहो से मौके बचा ले, जीवन डाहा के मौके दिखा ले, तो
मोके रात ले जीवन डहर देखाले कोई आज तक मोके रात ले जीवन डहर देखाले यीशु तोर दया मसीह तोर दया कहियो नी भूलाबू हो मसीह तोर दया कहियो नी भूलाबू हो मसीह तोर दया बैठ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा है, कितना है। मैं असम में जब प्रचार करता था, मुझे वहां पर लोग 4 घंटा 5 घंटा प्रचार करने के लिए बोलते थे, और वहां पर कुछ लोग तो बहुत अच्छे से परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते थे, और कुछ लोग तो बैठे बैठे करते थे। मजा आता था तब, जैसे अभी मैं पनिशमेंट दे दिया। देखिए, बचना है बचाना, ये नारा होना चाहिए वसीलों। अगर बंगाल में राजनीति होता है तो हम ये तय करके चले, बंगाल में हम राज करने वाले बने। एक जागृति को लाना है तो जागने वाला को बनना होगा। मैं पास्टर मेरे को बोल रहा है, धीरे से पास्टर जी। एक बहन है जिसे आप जानते हैं, गर्भवती है, उसका पैर दर्द कर रहा है। फूला हुआ था पैर फूला हुआ था, पैर भी फूला हुआ था। पैर भी फूला हुआ था। आइए आ जाइए। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा यही, क्योंकि यीशु मसीह को, परमेश्वर को ना इसलिए मनुष्य के रूप में आना पड़ा, क्योंकि मनुष्य आज इतना चालबाज है ना, कब तक हम यीशु मसीह को धोखा देते रहे। परमेश्वर पता था कि मनुष्य के बीच में अगर हम मनुष्य के जैसे नहीं जाएंगे ना, तो मनुष्य विश्वास नहीं करेगा। यही आज मनुष्य का नेचर बन गया है। आज मनुष्य को परमेश्वर क्या नहीं किया। उस यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया। दुख लगता है। और धोखा जानते हैं ना, जमीन से पूरा हम लोग उखाड़ करके अस्तित्व को खो देता है। धोखा जब किसी से खाता है ना कोई, तो बहुत अंदर से टूट जाता है। और यीशु मसीह जो महिमा का धन था ना, उस धन को यहूदा इस्करियोती ने नहीं पहचाना। आज हम और आप कहीं ऐसा तो नहीं है। उस धन का महत्व को जानिएगा। आइए पास्टर बताइए कि जब गाड़ी चला रहे थे, और जो ये पास्टर प्रार्थना जन दिए, और जब मैं बाइक चला रहा था और मैं परमेश्वर से कहा, बाइक चलाने लगा, चलाते परमेश्वर इसी समय उस धन को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। नो डॉक्टर, नो टैबलेट, नो बैंक बैलेंस, महिमा का धन को वहां पर परमेश्वर भेजिए जहां आपका सरदूत महिमा कर रहा है। इस समय गाड़ी चला रहे परमेश्वर, कोई हो न हो, हम इस समय बाइक चला रहे और इसमें प्रार्थना का सेवा दे रहे हैं। इस महिमा का धन को वहां पर जाने दीजिए और इस समय आप काम कीजिए। यीशु के नाम से परमेश्वर उस वाहन को मांगते हैं। यीशु मसीह बोला है, हम तो धन है भैया, मांगो तो मेरा पिता देगा। रोमी 10:11 में बोलता है कि विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। मैं देख रहा हूं इस सेवाएं में जवान ज्योति लोग का आज फ्यूचर क्या हो जा रहा है। आज इसी समय को परमेश्वर युद्ध को परमेश्वर चुनना चाहता है। अरे जिसका कब्र में जाने का समय रहता है वह गिनती करते रहता है कि हे प्रभु हे प्रभु, लेकिन अगर जवानी में जो प्रभु को जीवन दे देगा ना, परमेश्वर उस धन को उसको बहुत तरीके से दे करके उसके जीवन में आशीष से परिपूर्ण करेगा।
सुनने के बाद क्या आता है कोई बात बताइए आप। जैसे मेरे मोबाइल में फ़ोन आता है प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, और उन्होंने फ़ोन करता है जो भैया कि ऐसा ऐसा बात है और प्रेग्नेंट भी है और पैर भी फूल गया है और बुखार भी है। लेकिन मैंने गया था दवा लाने के लिए, और जो आशा दीदी होते हैं जो सेंटर का, तो उन्होंने दवा दिया है और मैंने खिलाया भी, और दर्द भी हो रहा है पूरा। मैं क्या करूँ, और मेरे पास में पैसा भी नहीं है बोल के बोला उन्होंने, क्योंकि मैं सेवा देता हूँ वहाँ पर। और मुझे फ़ोन किया उन्होंने, तो मैंने बोला जैसे पास्टर जी गाड़ी में थे हम दोनों, और जैसे मैंने बोला कि तुम प्रार्थना करो, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे बोल के, और वैसे ही फ़ोन मैंने काटा और पास्टर जी को मैंने बताया, पास्टर जी ऐसा ऐसा बात है, प्रेग्नेंट भी है और उनके पास में पैसा भी नहीं था, पैसा नहीं था बोल के नहीं बताया पास्टर जी को, लेकिन उन्होंने बताया, मैंने बताया उनको कि पैसा प्रेग्नेंट भी है और पैर फूला हुआ है और कैसा क्या करना पड़ेगा बोल के मैंने बोला। तो उसी समय आए हम प्रार्थना करें बोल के, गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा देरी का बाद में जैसे हम लोग घर पहुँचे, उसी टाइम फ़ोन आया कि जैसा आप लोग प्रार्थना किए वैसे ही प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया बोल के। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसा भी नहीं है जो कि मैं दवा लेके आऊँ बोल के, लेकिन उस समय में जो प्रेग्नेंट रहते हैं दवा भी खाना नहीं पड़ता है, लेकिन उस समय में हमारे प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर है, उन्होंने उन्हें चंगा दिया। हालेलुया। हालेलुया। महिमा का धन को पुलिस का 3 का 2 पत्री में लिखता है, उसमें लिखता है विधि की नहीं बल्कि क्या होता है, आप लोग है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पे आप लोग है ना, प्रेज द लॉर्ड। धोखा नहीं, कब तक, जेनेसिस से रेवलेशन तक हम लोग कितना यीशु मसीह को जान पाते हैं, कितना उस धन को हमको आपको सही जगह इस्तेमाल नहीं करने के चलते आज शैतान हमारा खूब मजाक उड़ा रहा है। आप क्या मजाक उड़ाने वाले शैतान का नहीं बन सकते हैं? करके हंस के आनंदित रहिए, शांति से रहिए। शैतान आता आंधी लेकर के, आप रहिए ना भैया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जान शैतान लेफ्ट जा राइट जा, हमको सीधे जाने दे। शांति का राजा को कहिए, शांति आप मेरे अंदर में राज करने दीजिए, राजा आपके साथ रहेगा। कोई टेंशन। मैं प्रार्थना जब यह कार्यक्रम कर रहा था, मैं प्रोग्राम कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर पैसा से परमेश्वर से पैसा नहीं मांग रहा। ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर से हम पैसा नहीं मांग रहे थे, परमेश्वर से दर्शन मांग रहे थे कि कलकत्ता में परमेश्वर आत्मिक जागृति को लाइए। आज इसी हॉल में हम लोग 40 थे ना, आज हम लोग कितना हो गए हैं, 100 के करीब ज्यादा हो गए। आने वाला साल में हम लोग इससे ज्यादा हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस्तेमाल कीजिए, आप उस एटीएम को इस्तेमाल कीजिए जो आपको घुसनेगा। एटीएम नो, परमेश्वर का राज में सिंहासन के पास विश्वास से उस एटीएम को डालिए। मेरे परिवार का कर्ज को हटाइए इसमें से। आमीन, आमीन, आमीन। कोई भी ऐसा व्यक्ति आज नहीं है जो कर्ज में नहीं डूबा। उस धन को इस्तेमाल कीजिए, कर्ज से आपको डूबेगा। बोलता है पृथ्वी की वस्तु को नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, बोलता है। क्या ऐसा हो सकता है? आप जब भी प्रार्थना कीजिएगा, शैतान आपको बोलेगा क्या प्रार्थना कर रहे हो? पैसा तो हम ही देते हैं,
लेकिन पैसा परमेश्वर, शैतान कुछ नहीं बनाया, उस पर अधिकार कर लिया। आप अपने कमाई पर अधिकार करते हो कि नहीं करते हो? परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आप अधिकार करोगे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस महिमा का धन को हम सही जगह इस्तेमाल करें। अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जेनेसिस का पत्री में 1:26 में परमेश्वर बोलता है, हम तुमको आशीष दिए और अधिकार दिए, हम लोग कहाँ अधिकार इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। बड़ी दुख की बात है। परमेश्वर जो हमको आपको उस परिस्थिति में ला करके खड़ा करता है कि हम उस परमेश्वर को आज हकीकत रूप से समझ सकें। परमेश्वर हमारे नजदीक में आकर के हमसे बातचीत करना चाहता है कि हम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर भला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए बार बार देना चाहता हूं। हमारे बीच में अमित ब्रदर हैं, पीछे बैठे हैं। बहुत साल से हम लोग सफर कर रहे हैं भिन्न भिन्न कलीसिया से, लेकिन आज हम मसीह की एक आवाज क्यों करना चाहते हैं? वहां पर कोई मिशन नहीं है, यहाँ पर मिशन किशन खाना कर कर के शैतान यहाँ पर सब ड्रामा करके रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ अमित ब्रदर जैसे यूथों। आज इस कलकत्ता में उनका कल मैं टेट का काम कर रहा था, उनका व्यक्तित्व में सचमुच में एक खुशबू है। अन्य जातियों के बीच में उनका नाम क्यों? इसलिए यीशु मसीह को जीवन प्रथम स्थान दिया है। परमेश्वर उस महिमा का धन को बहुतायत से बांटना चाहता है। आप उस धन को आप इस्तेमाल कैसे करोगे, आपकी जिम्मेदारी। पिछले साल की बात है, हम लोग कलकत्ता में शाम को इसलिए चर्च शुरू किए कि आज हर कलीसिया को शैतान जो है ना सुला देता है। हर कलीसिया को, अभी रांची के एक झारखंड का एक जगह नाम है जहां पर चुटिया बोलते हैं, जानते हैं? वहां पर मैं प्रचार कर रहा था। आज बड़े बड़े कलीसिया, बड़ा बड़ा सिंह, मेरा सिंह, तेरा सिंह, हमारा सिंह के जाएगा सर में, वहां पर परमेश्वर मिशन को नहीं देखता है। मैं उनको बोला, आप लोग जो है ना किसको लेकर के जाते हो आराधनालय में, और किसको लेकर के आते हो? सोमवार से शनिवार तक आप वही एक अच्छा क्रिश्चियन रविवार को बनते हो और बाकी दिन बिगड़ा रहते हो। सोमवार से शनिवार तक आप किसका सेवा करते हो? वो बोलने लगा कि हम लोग किसका सेवा करते हैं? वो कह रहा है वो लोग कि हम लोग तो ठीक से जाते हैं चर्च। अरे चर्च जाता तुम किसको लेकर के जाते हो? मेरा यीशु मसीह, उसका हाथ में कुछ भी नहीं, उसका मुंह में कोई गंजेड़ी नहीं है, राइट? यीशु मसीह का मुंह कभी ऐसा शराब पीने के लिए कभी किसी को नहीं कहा। तो ये बताओ भैया आप लोग कि ये शनिवार से सोमवार तक आप पीते हो, ज्यादा दिन किसका जा रहा है? एक दिन तो केवल रविवार के दिन जा रहा है, आप चर्च जा रहे हो, तो किसको आप अपना दोस्त बना रहे हो? वो दोस्त को लेकर के गिरजा में जाते हो और बार बार आउट और इन और आउट हो रहे। वही तो ना वचन सुनने का रहना, आप
परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पा रहे हो। वही आपको भटका रहा है चर्च में ले जाकर के, और आप वहां पर उसको बुला रहे हो। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं पिछले बार भी बोला था, बहुत सारे लोग यहाँ पर इतना अच्छा अच्छा साग है, राइट? कितने लोग जानते हैं यहाँ बहुत वैरायटी का साग है? बताइएगा। वन, हंसिए मत, मैं नाम नहीं लूंगा, छोड़ दीजिए। खैनी लोग आज बड़ी आराम से दबा करके खाते हैं, हे प्रभु कहते हैं। शनिवार से रविवार से सोमवार तक में, रविवार को जाते हैं। क्या साग है पास्टर? धनिया साग, भतुआ साग, और शिवानी महाराज बताइए क्या क्या साग है? हाँ, वो साग खाना चलेगी, क्या खैनी साग को मुंह में डाल करके हे प्रभु सोचिए। परमेश्वर ऐसे लोग से स्तुति आराधना नहीं। तो सोचिए 6 दिन उसका सेवन, आधा 1 घंटे के लिए चर्च जा रहे हैं, छोड़ दिए। आप बोलिए किसकी यह भक्ति में? किससे आप आशीष पा रहे हैं? जिसका सेवा कर रहे हैं उसी का तो आशीष पा रहे हैं। बाहर से हम प्रभु और गला सड़ा हुआ कबर के जैसा बोली, बात को समझ रहे हैं? आखिर कब तक परमेश्वर हमको पूछता है कि कब तक? परमेश्वर को क्यों हम ऐसा धोखा देंगे? हम परमेश्वर को क्यों? हम लोग पिछले साल चर्च खत्म किए। जब एक बार पैसा को आप जान जाओगे ना, मैं क्या बोला, इस प्रोग्राम को, जो मैं प्रोग्राम कर रहा था ना, परमेश्वर से पैसा नहीं मांगा, परमेश्वर से विजन मांगा। और विजन मेरा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। जो अगर कहता है मेरा विजन ना, वो अच्छे से यीशु मसीह को नहीं जानता है। मैं परमेश्वर से, पास्टर इसी पास्टर ने फोन किया, पूरा हम लोग चर्च खत्म किए। हरो जी पास्टर, इधर भी पास्टर है, इधर भी गवाही है। और इतना पैसा जो महिमा का सदुपयोग वहां हमेशा उस धन का बोलता है, परमेश्वर भी उस धन के अनुसार। पढ़िएगा कोई इस वचन को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़िएगा। पास्टर आप थोड़ा पढ़ वहां लेकर के आइएगा और दिखाइएगा, जो पढ़ के सुनाइएगा उसको। फिलिप्पी 4 को वहां लाइएगा और बताइए कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में महिमा के लिए हम लोग को तय करके रखा है, उसको परमेश्वर बांटा है, घटी नहीं होगा। कितना यूथ लोग आज यीशु मसीह को पुकारता है, सुबह उठता है हेलो डार्लिंग, रात हुआ तो गुड नाइट डार्लिंग। अरे गुड मॉर्निंग यीशु मसीह क्यों नहीं बोलते भैया? जीवन साथी पाने के लिए यीशु मसीह के पास आओ और कहो कि यीशु मसीह मुझे अच्छा जीवन साथी। अरे उस धन के ऊपर विश्वास करके देखो, जैसा नाटा मोटा छोटा काला लाल गोरा, हालेलुया, परमेश्वर देगा, धोखा नहीं देता है। लाइए मास्टर आ गया। फिलिप्पी 4 का 19 पर मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों। उसमें ऐसा लिखता है, और मेरा परमेश्वर भी, कितना अच्छा लिखता है, और मेरा परमेश्वर, फिलिप्पुस कह रहा है, कलीसिया को बोल रहा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस यीशु मसीह एक ऐसा धन है
उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज संसार एक दिशा में जरूर चलता है, लेकिन आपको यीशु मसीह को अपना धन के रूप में उसको स्वीकार करना है, वही आपको धनी बनाएगा। हम लोग शाम को इसलिए चर्च करते हैं कि आज शैतान संडे को भी अब नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। लोग संडे को भी नौकरी कर रहे हैं, इतना बिजी कर दिया है, इतना बिजी कर दिया है कि लोग आज इतना बिजी हो गया है कि परमेश्वर का संगति करने से भी अपने आप को वो लोग दूरी बना लिया है। परमेश्वर को आज वो लोग इतना साइड कर देता है कि वो परमेश्वर भी उनको साइड कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर को इतना साइड कर देता है कि परमेश्वर भी उनको साइड कर देता है। लेकिन हम लोग शाम को धन्यवाद देते हैं ब्रदर को, जो आज एक हम लोग के अंदर में परमेश्वर की जुनून को दे रहा है। और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हम लोग इस जगह कम संख्या में शुरुआत किए थे। आज परमेश्वर उस धन को जो आपके अंदर में परमेश्वर जिस धन को दिया है उस पर विश्वास करने के लिए आज कभी आपको घटी नहीं हो रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। परमेश्वर कितना महान है। ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है आपका योगदान से हो रहा है, आपकी उपस्थिति से हो रहा है, आपके सहयोग से हो रहा है। और परमेश्वर आपके मन को परमेश्वर तैयार किया है, और आपका जो इच्छा शक्ति है ना, परमेश्वर उसको खत्म नहीं किया है। इसीलिए आज हम लोग एक वचन नहीं बहुवचन है, परमेश्वर बहुवचन है। परमेश्वर हम लोग को बढ़ाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हम लोग शाम को प्रार्थना शुरू किए हैं, क्योंकि लोग आज सुबह रविवार के दिन प्रार्थना और संगति कर नहीं चाहते, इसलिए शाम को हम लोग इसीलिए किए हैं। इस कलकत्ता में लोग जो दुखी हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग शैतान की जंजीर में जकड़े हुए हैं, उन तक हम लोग पहुंच नहीं सके। मैं ये शाम को जब प्रार्थना खत्म किए, पास्टर मेरे को फोन किया। ये पास्टर भी फोन करता है, ऐसा नहीं, इसके कलीसिया में भी परमेश्वर काम किया है। जैसे प्रार्थना हम लोग किए, वैसे पास्टर का फोन आया। हम लोग नहीं जानते थे, इतना एक छोटा बच्चा था। क्या नाम था बच्चा का? आमोस। नहीं आमोस नहीं, जिसका पूरा अंगुली गल रहा था, जिसका ओ हाँ, ये सावन। उसका हाथ सब गल रहा था। कोई डॉक्टर नहीं, पूरा काला हो गया। अभी भी फोटो है, वो वहां ठीक छोड़ दीजिए। तो प्रोजेक्टर में जा सकता है, ले जाएगा। आपके पास ही फोटो नहीं? फोटो नहीं, छोड़ दीजिए। उसका अंगूरी सब आप आ जाओ बताओ। हमने नहीं जाना था उसको। जैसे प्रार्थना ने बनाया पूरा कलीसिया, हम ऐसे उस धन का जो महिमा आज आ रहा हमको परमेश्वर करा रहा है, उस धन को परमेश्वर दिया। ऐसी घुटने में आकर के हम लोगों ने उसको वहां बांटा। बताओ पास्टर आप। हाँ, हम लोग वहाँ सिलीगुड़ी में हैं, तो मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया। जैसे उन्होंने बताया, उनका नाम सावन था, जो करीब 5 या 6 साल का है बच्चा। उनका जैसे मेरे को बताया, मैंने वैसे ही पास्टर जी को बताया फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा बात है बोल के। उनका हाथ ऐसा था, मतलब सीधा नहीं हो रहा था बच्चा का हाथ, और शरीर ये पूरा फेस पूरा काला हो गया था, मतलब पहचान भी नहीं आ रहा था कि ये कैसा दिखाई दे रहा था वो। लेकिन मैंने जैसे पास्टर जी को फ़ोन किया और उन्होंने प्रार्थना शुरू किया, और जैसे प्रार्थना पास्टर जी ने किया, उसका दूसरा दिन से उसका हाथ खेलना, जैसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, उनका वैसा नहीं हो रहा था। लेकिन उनका जैसे प्रार्थना पास्टर जी ने किया और उनका हाथ खेलने लगा ऐसा करके, और उनका फेस में भी मतलब कि एक निखार चला आया उनके फेस में भी। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और अभी हम लोग से ही वो जुड़े हुए हैं, सेवा में भी आते हैं वो लोग। प्रभु ने चंगा किया है उनको, धन्यवाद।
वो धन में जितना प्रार्थना नहीं कीजिएगा तो कहाँ बांटिएगा? अकाउंट में पैसा जमा नहीं कीजिएगा तो कैसे बांटिएगा? अकाउंट में जमा होना चाहिए, महिमा का धन को इस्तेमाल कीजिए। पास्टर फोन किया और बच्चा का पिताजी हमको फोन करके बोलता है कि मेरा बेटा का हाथ मुड़ा हुआ है, गल रहा है और पूरा शरीर उसको कैसा दिखता था। बच्चों लोग उसको खेलता नहीं था, बच्चों लोग बात नहीं करता था, अकेले बच्चा बैठ करके दिन गुजारता था, उदास था। आप भी बांटो। अगर अपने पड़ोसी को नहीं बांटे हो ना, अपने मित्र को नहीं बांटे हो ना, तो बांटना सीखो। हम लोग जहां पर कलकत्ता में रहते हैं ना, ये शिवानी बहन, वो जोसबीर बहन, सबको हम लोग कैसे बांटे हम लोग जानते हैं। कंजूस मत कीजिए, नहीं बांटिएगा, शैतान बांटिए। महिमा का धन को बांटिए। मैं घुटने में आया और प्रार्थना करने लगा, और जब प्रार्थना जैसे खत्म हुआ, तुरंत उसका पिताजी फोन करके बोल रहे, हम कुछ नहीं, हम धन नहीं है। एक ही डॉक्टर है, वो डॉक्टर प्रथम डॉक्टर है, परमेश्वर है। उस महिमा को हमेशा महिमा कराता है, जिसने आप और हमारे लिए जान दिया है। मैं क्या बोला, पैसा बिना एक स्टेप आदमी नहीं बढ़ता है, वैसे ब्लड नहीं है। आपको एक थोड़ा सा ब्लड निकलाएगा तो आपको लगता है अब की हो गया, ऐसा बंगला ठीक बोल रहे हैं ना, ऐसा ठीक है ना पास्टर, क्या होगा ऑटोमेटिक। लेकिन परमेश्वर का बेटा का खून जो ना टप 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 बहते रहा। परमेश्वर जब प्रार्थना किए, उसका पिताजी तुरंत फोन किया और बोलता है कि मेरा बेटा का फिंगर है, वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, घूम रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, और 1-1.5 महीना के बाद मैं उस घर में गया। जब फोटो भेजा था और जब उस घर में मैं 1-1.5 महीने के बाद गया, बता रही उसकी माँ, पहले उसको खाना खिलाना पड़ता था। बांटिए इस मसीह महिमा का धन है ना, जितना बांटिएगा परमेश्वर आपको महिमा के लिए इस्तेमाल कराए। और इसीलिए आपको हमको परमेश्वर बनाया है कि हम परमेश्वर को महिमा भिन्न भिन्न तरीके से करें। वो बच्चा को देख रहा हूं तो उछल रहा है, देख रहा है, वो बच्चा लोग से खेल कूद रहा है, ऐसी था ना उस दिन। और मैं देखा कि बच्चा कितना खुशी से वो अपने मम्मी पापा से बातचीत कर रहा है। और मैं देखा कि जब हम उस घर में खाना खा रहे थे, वो बच्चा भी खाना खा रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लोग आज कितना भी चंगाई पा लेते हैं, कितना बार परमेश्वर उसको मौत से बचाता है, लेकिन वही छल 30 रुपया 30 सिक्का में यहूदा स्मृति आज मसीह बन जाता है। अधिक परमेश्वर का यही प्रश्न। वो बच्चा जब स्कूल, जब तबीयत खराब था, बच्चा स्कूल नहीं जाता था, लेकिन जब परमेश्वर उसको चंगा किया, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया। आइए सब लोग सब खड़ा हो जाएंगे और बच्चन बोलता है। दूसरा इतिहास उसका 7 का 5 पद में हम लोग एक साथ बोलेंगे। हो सकता है कि आज आप अपने परिवार के लिए उस महिमा का धन को आप इस्तेमाल नहीं किए। हो सकता है कि आप जिंदगी भर कमा रहे हैं, लेकिन आप अपने कमाई को किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? जिस कमाई को आपको आध्यात्मिक तपस्या करने की आवश्यकता है, जिस वचन को आपको लेने की आवश्यकता है,
जिस संगति को आप लेकर के एक मजबूती के साथ विश्वास की कुश्ती लड़ सकते हैं, उस चीज को आप जमा नहीं करके आज उस महिमा का धन को खो रहे हैं। आपको महिमा का धन को आज प्रार्थना के साथ वचन पढ़ करके परमेश्वर के करीब आकर के हम परमेश्वर से कहें। आज ये वचन कहता है, कितना अच्छा कहता है, हम एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? पास्टर जोश पढ़ने में हमारी मदद करेंगे, एक साथ बोलेंगे हम लोग, एक साथ बोलेंगे। अब जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी, है ना, आप रुक करके पढ़िएगा। पास्टर जोश, आप यहाँ से जाएंगे, उस महिमा का धन को आप इस्तेमाल कीजिएगा। पहले आप अपना जीवन में इस जगह से घोषणा कीजिएगा, आपका प्रार्थना में आपका मम्मी पापा का जीवन बदलना चाहिए। आपका प्रार्थना के द्वारा अपने कुटुंब के लिए, अपने खानदान को आप इस जगह से आपको घोषणा करना है। परमेश्वर बोलता है उस स्थान पर मेरी आंखें खुली है और मेरी कान लगे रहेगी। हालेलुया। पास्टर पढ़िएगा। अब से जो प्रार्थना इस भवन, इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। एक साथ सबको बोलो ये पास्टर। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। सुनिए सुनिए, कान खोल करके सुन लीजिए। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर को मोतिया भी नहीं होगा, अंधरा नहीं है, अंधा नहीं है। आप जितना भी, हम भी चश्मा लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आप धोखा दे सकते हैं अपने आप को, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर बोलता है कि अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी, उस स्थान पर मेरी आंखें खुली है और मेरी कान लगे रहेगी। आज आपको तय करना है, आप जितना कमजोर बनिएगा, शैतान आपको उतना कमजोर बनाएगा। हालेलुया। काम कीजिएगा, परमेश्वर काम देगा। काम नहीं कीजिएगा, परमेश्वर बोल दिया है पृथ्वी में मेहनत करो। लोग धन इकट्ठा करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, हम परमेश्वर को कितना सुबह से शाम तक खोजते हैं। इस स्थान पर इस समय हम लोग आंख बंद करेंगे और हम लोग किसी को नहीं देखेंगे। आप अपने आंखों से कहें, बंद करके कहेंगे, परमेश्वर हमको इस आंख को दिया है, ये भौतिक आंख है। हम अब परमेश्वर से कहे, अपने आत्मिक आंख से बंद करके कहे, परमेश्वर अब से इस स्थान पर जो मैं प्रार्थना करने जा रही हूं, कर रही हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी है आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ। हो सकता है मैं अपने घर से, हो सकता है कि मैं किसी आराधनालय में, हो सकता है मैं कहीं पर प्रार्थना करने गया, उस समय मेरी प्रार्थना को आपने नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर आज मैं अपने जीवन में तय कर लिया हूं कि मैं अपने जीवन में आपको वो महिमा का धन को मैं रिसीव करना चाहता हूं। मेरे जिंदगी में शांति दीजिए, मेरे जिंदगी में खुशियों की बहार को लाइए, मेरे जिंदगी में वो फिजा को लाइए, मेरी जिंदगी में सुकून को दीजिए, एक पल को दीजिए। मैं अपनी पनाह को आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। परमेश्वर से कहिए इस जगह, इसी समय कहिए, परमेश्वर इस समय सुनना चाहता है। कम ऑन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने ओठों को खोल करके कहेंगे, मत देखिए किसी को, और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं आज आपसे, मैं अगर कोई क्वेश्चन है परमेश्वर से, अगर आप भी परमेश्वर को नहीं देखे हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर हम इस समय आपको, हम इस समय प्रार्थना में लाना चाहते हैं। आप इस समय हमारे और नजर को लगाइए। हाँ परमेश्वर, नजर के सामने हमारे आप आ जाइए। परमेश्वर, हम दूरी में नहीं रहना चाहते हैं, नजदीकी में रहना चाहते हैं। परमेश्वर, आज हम आपका बेटा का
गुप्त आगमन को परमेश्वर हम जानते हैं, उस समय चुपचाप से आएंगे और अपने लोगों को लेकर के जाएंगे। हम सबों को परमेश्वर आप आएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। सब मिलके गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हमारे होशाना होगा है राजा, महिमा होए सदा। प्रभु हमारा खुदा। हे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सारा तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा खुदा, गाए हो सारा तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। आज इस स्थान में जो कुछ भी हमने नहीं मांगा है उसे हम सब मांगना चाहते हैं परमेश्वर। यहाँ पर हमारे बीच में संध्या देवी सिंह है, जो आज अपनी बेटी के लिए संतान मांगना चाहती है। परमेश्वर उसे आप निराश मत होने दीजिए। परमेश्वर संध्या बहन का परमेश्वर आज बहुत सारा प्रश्न है, उसकी बेटी का वो अपने संतान नहीं आ रहा है, बहुत सारा उसके ऊपर क्वेश्चन प्रश्न चिर उठ रहा है। समाज कह रहा है, लोग ताना मार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हम ताना मारना नहीं चाहते, बल्कि घुटने में आकर के परमेश्वर आज उस महिमा का धन को हम सब मिल करके इस समय आह्वान करना चाहते हैं। परमेश्वर आइए इस समय हम सब मिल करके अपने हाथ उठा करके, हमारे बीच में संध्या देवी सिंह है, आज हम सब मिल करके आइए हम सब घुटने में हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर उसकी बेटी को आप संतान दीजिए, उसके बेटी को परमेश्वर खुशी से भर दीजिए। परमेश्वर जो समाज उसे प्रश्न लगाता है उसका उत्तर आप दे दीजिए।
लीजिए। परमेश्वर ये भी परमेश्वर आपका मोहब्बत को जानती है, सबको देखी। एक बार आप यीशु मसीह दिखा दीजिए, आपका जलवा दिखा दीजिए। परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं यीशु के नाम से, परमेश्वर उसकी बेटी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दीजिए। हालेलुया। हम गाए हो अपने जीवन में अपने जीवन को खो रही है और खो रहा है। मैं ऐसे जुआओं के लिए प्रार्थना करते हैं, युद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जवानी को लोग ढेर सारे मत दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे जुआओं को आज इसी समय इस स्थान से आज जुआ से जितने भी जुआ जुआती है युद्ध है, उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम गाए हो प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता भजन संहिता 71 का 12 पद बोलते हैं, हे परमेश्वर मुझसे दूर मत रहो। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता करने में भूल नहीं कर। आज इस जगह से हम सब मिलकर के अब इसी समय प्रार्थना करते हैं 2 के अनुसार परमेश्वर किसी को खाली होकर मत जाने दीजिए। हर एक को परमेश्वर इस समय छू लीजिए, टच कीजिए परमेश्वर, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए जीसस, ओ यीशु छू लीजिए। एक एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। यहाँ इस कलकत्ता में परमेश्वर एक एक मसीहियों को भेदभाव को तोड़िए, तो भेदभाव का दीवार को, यरीहो का दीवार को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हम मसीह की आवाज में एक बन सके, हम मसीह की आवाज में एक बनने सके। ओ प्रभु, आज के समय में हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर कलकत्ता में छात्र ज्ञान दीजिए परमेश्वर। हर एक लोग जो लोग दुखी हैं, जो परमेश्वर आज अपने जीवन में टूट गए हैं, जो लोग अपने जीवन परमेश्वर नौकरी की तलाश में हैं, जो लोग परमेश्वर आज नौकरी करके भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल को नहीं छू पा रहे, परमेश्वर आज उनको इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सिखाइए आज इस समय परमेश्वर से कहना है, मैं जरूर नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन ये नौकरी किसके लिए है, किसकी नौकरी कर रहा हूँ, कौन नौकरी दिया है, मैं उस नौकरी का हकदार किसको देना चाहता हूँ। परमेश्वर आज उनकी आंखों को खोलिए। ओ हालेलुया, हम गाए हो तू राजा होगा, हे राजा
है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सदा तू राजा होगा मेरे राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा Yes, Lord. Yes, आज एक को परमेश्वर आप पूछिए, बातचीत कीजिए और कहिए कि इस समय हम अपने मन को त्याग करना चाहते हैं। आज के बाद मैं अपने जीवन में अपने आप को जगह देना चाहती हूँ। चाहता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ यीशु दया कीजिए इस समय। परमेश्वर हर एक के घर में आज क्राइसिस है, हर एक को पैसा चाहिए, लेकिन परमेश्वर को पैसा के लोग आज संघर्ष करते हैं। उस पैसा से ज्यादा परमेश्वर आप एक ऐसा धन को हमारे बीच भेजे हैं, वो धन को हम सही रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे, हम शांति पाएंगे उस धन के द्वारा, आनंदित होते उस धन के द्वारा हम प्रेम रख पाते हैं, उस धन के द्वारा हम हर परिस्थिति में धीरज रख पाते हैं। परमेश्वर आज इस समय हमारे को इस समय धीरज सिखाइए, नमन सिखाइए, प्रेम को रखिए हमारे बीच में। हे पिता हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजा होगा तेरे राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे परमेश्वर, हम फिर से इस जगह से घुटने में आकर के आपके धन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे बीच में सोनी और अजीत बेटा बेटी आए थे। परमेश्वर पिछले समय से उनको परमेश्वर इस संसार का डॉक्टर से वो लोग जितना भी दिखाए वो उपचार चल रहा है, लेकिन परमेश्वर आज ये लोग आपके दरबार में आए हैं और आज इसको आपने लाया है। आज सोनी और अजीत को परमेश्वर एक पति पत्नी बनाए, एक ऐसा दंपति बनाए। आज हम इस जगह से घोषणा करना चाहते हैं, परमेश्वर आप इनके जीवन में आशीष को आने दीजिए और इनका भी संतान को आप दीजिए इनको भी, ताकि वो बेटा और बेटी जो आएगा आपको महिमा होने पाएगा। और हर एक रुकावट को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं और शैतान के सारे बंधन को यीशु के नाम से कुचलते हैं। वो परमेश्वर सोनी और अजीत को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, उनके मन को त्याग कीजिए। वो लोग यीशु से कहे और कैसे कहे कि यीशु आप दुनिया को दे सकते हैं, मुझे और हमें नहीं देते हैं। गिड़गिड़ाने का परमेश्वर मान से गिड़गिड़ा करके दीजिए बेटा बेटी को। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। खुशी और गम में खुशी और गम में
धन्यवाद जीवित महान आणि दयालु पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा श्री परिशुद्ध पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। इस समय इस वक्त में पिताजी शुरू से लेकर आखिरी तक पिताजी आपने चलाया पिताजी, अपने दासों को पिताजी सचमुच वचन से पिताजी और अपने बेटा बेटी का जो गवाही से पिताजी आप तृप्त किया है पिताजी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी यीशु मसीह। ओ लॉर्ड इमेज गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, एवरी डे होली स्पिरिट लॉर्ड पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी यीशु मसीह जैसे भी पिताजी आपने पिताजी हम लोग को पिताजी आपकी आत्मा अनुसार पिताजी चलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आपने पिताजी अपने बच्चों को सुनने के लिए मदद किया पिताजी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आप सचमुच महान हैं, दयालु हैं पिताजी। हर एक बेटा बेटी को पिताजी आप प्यार करते हैं पिताजी, आप प्यार करता है। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ रास्ता है पिताजी, प्यार है पिताजी, ओ सागर है पिताजी। इसलिए पिताजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पिताजी हर एक को आशीषित बना पिताजी इस हालेलुया कलकत्ता में पिताजी। हर एक को पिताजी अपने बेटा बेटियों के जरिए पिताजी आपकी महिमा होने पाए पिताजी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ पिताजी। धन्यवाद पिताजी इस समय इस वक्त में पिताजी हम लोग पिताजी सचमुच पिताजी आपको प्रेम को जानते हैं पिताजी, आपके हालेलुया हालेलुया अनुग्रह आशीष को जाने पिताजी, अनुग्रह रास्ते हुए पिताजी आपके चरणों में पिताजी होकर हम लोग जाने के लिए चाहते हैं पिताजी। आप स्वयं तेरे आत्मा होकर पिताजी हमें चलाइए पिताजी, ताकि आपके साथ में हम लोग पिताजी हालेलुया जुड़ पाए और एक दूसरे पिताजी आज के दिन में पिताजी नहीं जुड़े हैं पिताजी उन लोग भी पिताजी हम लोग के द्वारा पिताजी हर एक के द्वारा पिताजी जुड़ नहीं पाए पिताजी। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पिताजी, प्रार्थना करता हूँ पिताजी हर एक के जीवन को पिताजी आप दर्ज कीजिए पिताजी, ताकि हर एक बेटा बेटी पिताजी उन्हें जीवन से मिलेंगे पिताजी, हर एक पिताजी आपकी राह को देखने पाए पिताजी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पिताजी, धन्यवाद पिताजी। और इस समय इस वक्त में पिताजी हम लोग पिताजी पेट तरफ जाएंगे पिताजी, स्वयं तेरे आत्मा होकर केंद्रित कीजिए पिताजी, ताकि हर एक की हालेलुया होठों को हर जीवों को लिरिक्स को समाज को पिताजी कॉन्शियस को पिताजी खोल दीजिए पिताजी, ताकि आपकी हालेलुया चरणों में हालेलुया भेंट ला सके पिताजी। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिताजी। धन्यवाद पिताजी हम लोग के लिए नहीं पिताजी आपकी महिमा के लिए पिताजी आप हाले अपने बच्चों को अपने बेटा बेटियों को इस्तेमाल कीजिए पिताजी। धन्यवाद पिताजी, मैं पूरा मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद देते सारी बात तेरे हाथ में रखता हूँ, आदर में सम्मान के प्रभु इस मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको लंच है और साथ ही 45 मिनट्स के बाद हम लोग फिर यहाँ इकट्ठा होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टर जोलेन हंस से कि वो यहाँ पे आके लंच के लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोग सीधे नीचे जाएंगे अपना लंच के लिए उसके वहाँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवितकारी अनुग्रहकारी शामर्थी पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने आज हमें ऐसा अवसर दिया प्रभु कि हम कलकत्ता शहर में आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर जिस प्रकार तूने मूसा को पिता परमेश्वर मन्ना दिया और शेरों के मुंह से बचाया दौड़ को प्रभु, उसी प्रकार पिता परमेश्वर इस कलकत्ता शहर में जितने भी हमारे प्रियजन भाई बहन है प्रभु, हर एक के आत्मा को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। तो ऐसा होने दीजिए प्रभु कि ये आत्मा हम बचा सके पिता परमेश्वर। इस समय तुझसे मांगते हैं प्रभु, जितने भी यहाँ पर आपके प्रेम के द्वारा जो भी हमारे लिए हम भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर भोजन तैयार किया गया है और जिस ओर से प्रभु आया है प्रभु, हम उसके लिए हम तुझसे धन्यवाद करते हैं। प्रेम के द्वारा प्रभु हम इस भोजन को ग्रहण करें और पिता परमेश्वर हर एक भोजन पर जो भी शैतान और कीटनाशक वस्तु है उसे यीशु के नाम से दूर कर दीजिए कि हम सब उसको खाए पिए और बल पाए और तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करने पाए। पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा तुझी को देते हैं, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।